देख रहे हैं अपेक्स न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश वर्मा। स्वागत है आप सभी का अपेक्स न्यूज इंडिया में। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिलांग पुलिस ने शुक्रवार को एक फर्जी अधिकारी और उसके 12 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने संदिग्धों के कब्जे से 3 लग्जरी वाहनों से मैगजीन पाउच, एयर गन और एयर पिस्तौल जब्त की। इस कार्रवाई मेन सेक्रेटेरिएट के बाहर की गई, जिससे संभावित सुरक्षा चूक टल गई। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस ने मेन सेक्रेटेरिएट के सामने 3 संदिग्ध वाहन खड़े देखे। इनमें से एक वाहन पर पंजीकरण संख्या भी नहीं थी और सभी वाहनों के शीशे काले टिंटेड थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहनों से 12 युवकों को बरामद किया, जो सभी काले कपड़ों में थे। स्थिति संदिग्ध लगने पर विशेष अभियान दल सॉट को मौके पर बुलाया गया। तलाशी में 6 मैगजीन पाउच, 5 वॉकी टॉकी सेट, 5 एयर गन और 2 एयर पिस्तौल बरामद हुए। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सायम ने बताया कि बिना नंबर प्लेट की लाल रंग की ऑडी A4, एक स्कॉर्पियो ML05 AF0309 और एक काले रंग की टोयोटा इनोवा T0922 ML7411 वाहन मौके से जब्त किए गए। ये सभी वाहन मेबानशिम स्नाइटांग नामक व्यक्ति के थे, जो पोहक से शिलांग का निवासी है। वाहनों में उसके साथ 12 लोग मौजूद थे, जो सभी काले कपड़ों में बॉडीगार्ड की तरह दिख रहे थे। सभी आरोपियों को सदर थाना ले जाया गया और बरामद सामान को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने स्नाइटांग समेत 13 लोगों के खिलाफ फर्जी तरीके से कानून प्रवर्तन एजेंसी का रूप धारण करने और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी की है। एसपी सायम ने कहा, प्रारंभिक जांच से यह प्रतीत होता है कि स्नाइटांग अपने साथ 12 लोगों को शक्ति प्रदर्शन और लोगों को डराने धमकाने के लिए रखे हुए था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जगहों पर एयर पिस्तौल रखना कानूनन अपराध है। बरामद एयर गन सामान्य प्रकार की नहीं है। इन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। स्नाइटांग ने स्वीकार किया कि वाहन उसके ही हैं। उसने खुद को सोशल वर्कर और एक समूह का नेता बताया। साथ ही उसने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने निजी सुरक्षा रखने या एयर गन ले जाने पर कोई पाबंदी लगाई है। उसका दावा था कि उन्होंने जनता को किसी तरह से परेशान नहीं किया। This incident that has happened outside the main gate of Secretariat, opposite. Well, today at about 2:30 p.m., one Audi was a black Scorpio and a Toyota Innova were found parked just near Shoppers Stop, which is just opposite the Secretariat, and they were found with tinted glasses. So police personnel from SP's office went to check them, and when they went to check these vehicles and all that, because they were with tinted glasses, and one vehicle was without any number plate, and they found a group of people, about 12 different numbers, all wearing dressed in black. And so immediately the SOT was alerted and all that, and they rushed that spot and all that, and on searching the vehicle we found magazine pouches, about 6 magazine pouches, about 5 handheld walkie-talkie sets, then about 5 air guns and 2 air pistols, and these people were taken to Sar police station after that for conducting formalities. These items were seized and all that. So as of now, we are also conducting search and all that to ascertain if there are any more items
which are incriminating in nature. We'll be taking up a case in Sardar PS for impersonating as law enforcement agency personnel and also under the Arms Act. Vivek, even we one vehicle had a siren and all that, and all these vehicles are owned by one Neban Shem Snaitang, 25 years. He's a resident of Boxer, and he has been taking these people around, moving around with siren, with tinted glass and all that. So the motive behind it will be further established after we have investigated and all that. Apparently, it appears that this person, Neban Shem Snaitang, is using 12 people. If 12 people dressed in black and carrying those kind of weapons, probably with a motive to intimidate, probably with a motive to show that he is probably in a position of power, so that he could either influence, intimidate, or get his way through. So that is what preliminary findings indicate. But yet we will actually have an in-depth investigation into the matter, and then we can ascertain as to what is really the purpose of carrying 12 people, tinted glass, siren, and all that. And these are all illegal. See, regarding air pistols and all that, if you use an air pistol, it's either to kept at home and only to be used in certain places where, which is probably if it's a forested area and all that, but you cannot carry them publicly. The purpose of carrying and these type of guns, they are not conventional air pistols. Now we need to see the caliber of these air pistols also, for which we'll have to send to the forensic laboratory. Coupled with the outfit they are wearing and the magazine pouches and the walkie-talkies and the tinted glass, these combined in combination and all that have a different motive altogether. So which demands and compels further investigation. The individual was saying that he is a social worker. See, in the social worker, I haven't come across any social worker who dresses or who walks around with 12 men in an intimidating manner. So I totally beg to differ with you that, or beg to differ with that kind of a stand that a person is a social worker. I mean, you don't walk around with those kind of weapons. So it demands further investigation. Right now, just 13 men were 12 men plus with this other accused, Neban Shem Snaitang. So total 13 men were arrested. Yes. And book on him. See, we are yet to register the case and all that. Right now, other formalities are going on. So probably intimidation, Arms Act, impersonation of police personnel. Arms Act of 2016. Yes. It appears to be like that. Now, why, like I said, why would a person move around with 12 people that also who act like henchmen and with weapons inside and magazine pouches? I mean, Specifically, to ascertain actually why he parked out there, whether he was really going for shopping in Shoppers Stop. I will get to know once the investigation team updates me on that regarding why they parked actually just near the secretariat. so can anybody? Private security, number one is we have to ascertain whether, now if you're private security, they always have the name of the security agency, and there's nothing which shows whether they are from any security agency and all that. There's nothing. The air pistols, air guns, on being asked by those men, they said that it's been given by the owner only. Usually the security agency provides all that. So we need also to ascertain whether they are affiliated with any security agency or any other organization also. this like that is his motive. At first glance and on preliminary investigation, doesn't appear that he belongs to any band outfit or to any underground and all that. The motive is I think is different, but nonetheless we will actually we'll investigate into all matters, all quarters and all that. हनीमून मर्डर मिस्त्री के नाम से पूरे देश में विख्यात राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।
राजा की पत्नी सोनम को राजा रघुवंशी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह मामला 23 मई को सामने आया था, जब राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए थे और लापता हो गए थे। 2 जून को राजा का शव मिला। सोनम को बाद में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि सोनम ने राज के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में राज, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान भी आरोपी हैं। सभी आरोपियों पर हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं। पुलिस ने सोहरा उपमंडल न्यायालय में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सोनम को मुख्य आरोपी बताया गया है। सोहरा सिविल सब डिवीजन प्रशासन ने गुरुवार को वेसाओडोंग फॉल्स और रियात अर्लियांग क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता BNSS की धारा 173 के तहत लगाई गई सभी पाबंदियां हटा दी। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी। निर्णय के बाद लेकडो गांव को वेसाओडोंग फॉल्स पर पर्यटन संबंधी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई है। वहीं उमबलाई गांव के अंतर्गत आने वाले रियात अर्लियांग स्थित पार्किंग स्थल भी अब पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। यह फैसला सोहरा सब डिवीजन ऑफिसर सिविल MA चालम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर PM सायम और माफू उमबलाई, लेकडो और लेटलिंडोप गांवों के मुखिया उपस्थित रहे। यह बैठक लेकडो गांव के डोरबर शनोंग द्वारा 20 अगस्त 2025 को दी गई याचिका और 9 अगस्त को हिंद सोहरा के CM द्वारा जारी किए गए सीमांकन आदेश के आधार पर बुलाई गई थी। चालम ने स्पष्ट किया कि यह सीमांकन आदेश खड़क की कार्यकारी समिति द्वारा गठित न्यायाधिकरण के निर्देश पर जारी किया गया था, जैसा कि मेघालय उच्च न्यायालय ने 2024 में आदेशित किया था। सीमांकन के अनुसार वेसाओडोंग फॉल्स का कुछ हिस्सा लेकडो गांव के अधिकार क्षेत्र में आता है और अब वहां पर्यटन संचालन की जिम्मेदारी उसी गांव के पास होगी। हालांकि उमबलाई और माफू गांव के प्रतिनिधियों ने सीमांकन प्रक्रिया पर असहमति जताई और आदेश को चुनौती देने का संकेत दिया। उन्हें उचित न्यायालय में कानूनी उपाय तलाशने की सलाह दी गई। SDO ने भरोसा दिलाया कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नया निर्देश जारी होने पर उनका कार्यालय उसका पालन करेगा। असम के परिवहन संघों के एक संयुक्त संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि बालाजियत जिरवा के नेतृत्व वाला ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन असम रजिस्टर्ड वाहनों को मेघालय के पर्यटन स्थलों पर जाने से रोकता है, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ असम TTAA के अध्यक्ष कौशिक भुयान ने बताया कि यह प्रस्ताव मोटर परिवहन सम्मिलित सेवाकर्मी मंच असम की बैठक में पारित किया गया। उन्होंने कहा कि यदि अकमतता अपने फैसले पर अडिग रहता है तो असम की शीर्ष संस्था आवश्यक सेवा वाहनों को मेघालय भेजने से रोक देगी। साथ ही मेघालय रजिस्टर्ड वाहनों को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और LGBI हवाई अड्डे से यात्रियों को लेने छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संस्था ने कहा, जवाबी नाकेबंदी से मेघालय एक शून्य पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा, जो सभी हितधारकों के लिए हानिकारक और अस्वीकार्य होगा। TTAA ने 16 सितंबर को अकमतता द्वारा प्रस्तावित आंदोलन का विरोध करते हुए मेघालय सरकार से अपील की है कि वह पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एक तरफा फैसले से बचे। असम संगठन ने अकमतता की मांग को अनुचित और स्वार्थपूर्ण करार देते हुए कहा कि असम रजिस्टर्ड टूरिस्ट वाहनों के पास वैध परमिट हैं, जिनमें असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए 3 स्टेट टूरिस्ट परमिट शामिल है। कुछ वाहनों के पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी है। संघ ने कहा, ये वाहन मेघालय सरकार को भारी राजस्व देते हैं और कानूनी रूप से विभिन्न पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों को ले जाने के अधिकृत हैं।
पहलगाम में हाल की घटना का उल्लेख करते हुए टीटीए ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरह मेघालय का पर्यटन भी किसी अप्रिय घटना से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। पर्यटन शांति, सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित है। संस्था ने चेतावनी दी, आज के सोशल मीडिया के दौर में एक नकारात्मक घटना वैश्विक स्तर पर कुछ ही मिनटों में फैल सकती है। पर्यटकों को यदि शत्रुतापूर्ण व्यवहार या असुविधा का सामना करना पड़ा तो मेघालय अपनी मेहनत से अर्जित छवि और प्रतिष्ठा खो देगा। टीटीए ने यह भी स्पष्ट किया कि सिक्किम का मॉडल मेघालय में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि संवैधानिक और भूराजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हैं। सिक्किम को अनुच्छेद 371F और सीमा संवेदनशीलता के कारण विशेष दर्जा प्राप्त है। सीबीआई कुख्यात व्हाइट इंक केस 2008 में मेघालय उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी हाई कोर्ट के आदेश का विस्तृत विश्लेषण करने के ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेगी। गुरुवार को मेघालय हाई कोर्ट ने इस मामले में कैबिनेट मंत्री अम्पारीन लिंगदोह और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जेडी संगमा व अम्मेका लिंगदोह के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे। जनता के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या सीबीआई हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस पर एजेंसी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, अभी यह कहना संभव नहीं है कि हम अपील करेंगे या नहीं। आदेश का अध्ययन करने के बाद ही कानूनी रूप से सही निर्णय लिया जाएगा। भारत में आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नियमित अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन होती है, जबकि स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर करने की अवधि 60 दिन होती है। इधर अम्पारीन लिंगदोह की ओर से कानूनी सलाहकार ने साफ किया है कि अगर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो वे इसका डटकर मुकाबला करेंगे। असम में गुवाहाटी स्थित राजभवन के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजभवन 5 किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। ये निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित BNSS की धारा 163 के तहत लगाई गई है। यह कदम राजभवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पुलिस ने बताया कि कुछ गतिविधियां राजभवन के लिए खतरा बन सकती थी, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। किसने जारी किया आदेश? गुवाहाटी के पुलिस उपायुक्त मध्य अमिताभ बसुमतारी ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि जो भी इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। बसुमतारी ने अपने आदेश में कहा कि मेरे ध्यान में लाया गया कि गुवाहाटी स्थित राजभवन के आसपास की कुछ गतिविधियां इस उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बन सकती हैं। आदेश में क्या? आदेश के मुताबिक राज्यपाल का आधिकारिक निवास होने की वजह से राजभवन में आवश्यक सरकारी कार्यों के संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। आदेश में बताया गया कि इसलिए BNSS की धारा 163 के तहत राजभवन के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सार्वजनिक समारोहों, विरोध प्रदर्शनों, रैलियों या प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। असम राइफल ने मिजोरम के लांगतलाई जिले के चामदूर पी गांव में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। अधिकारियों के अनुसार इलाके में गश्त के दौरान संदिग्ध को रोका गया और तलाशी लेने पर उसके पास से एक 22 एयर कार्बाइन, एक 22 सिंगल बैरल मिनीएचर राइफल, विदेशी निर्मित 2 22 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार शख्स और जब्त किए गए हथियारों को आगे की जांच के लिए लांगतलाई थाने को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में 29 अगस्त को मिजोरम के चंपाई जिले में असम राइफल्स ने एक और बड़ी सफलता हासिल की थी।
साइकुम्फाल गांव में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था। अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए खासी स्टूडेंट यूनियन लाबान सर्कल में 8 दरबार स्नोंग के साथ मिलकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया है। अब मकान मालिकों को गैर जनजाति लोगों के किराए पर मकान देने से पहले संबंधित दरबार स्नोंग से अनुमति लेनी होगी। यह प्रस्ताव गुरुवार को करबी हाउस लाबान में हुई बैठक में पारित हुआ और इसका तत्काल प्रभाव से पालन किया जाएगा। नियम किराएदारों के साथ साथ गैर जनजातीय मजदूरों, दुकानदारों, ठेकेदारों और गेस्ट हाउस में रहने वालों पर भी लागू होगा। निर्णय के अनुसार जो मकान मालिक, दुकानदार, ठेकेदार या गेस्ट हाउस संचालक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दोरबर के नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन के मामलों को पुलिस और यूनियन तक भी भेजा जा सकता है। KSU ने मांग की कि इस प्रस्ताव को स्थानीय सार्वजनिक प्रसारण सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए ताकि सभी लोग पूरी तरह अवगत हों। नेपाल ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन प्लेटफॉर्म को 7 दिनों के भीतर नेपाल के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन ये ऐसा करने में नाकाम रहे थे। मंत्रालय के कंपनियों के लिए पंजीकरण पूरा करने के लिए 28 अगस्त से 7 दिनों के समय सीमा तय की गई थी। बुधवार रात को यह समय सीमा समाप्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू होंगे और मंत्रालय ने संबंधित कंपनियों को पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। सरकार ने पहले ही नियमों का पालन करने वाले प्लेटफॉर्म को निलंबित करने की चेतावनी दी थी। ये प्रमुख प्लेटफॉर्म हुए बंद। अभी तक टिकटॉक, वीटॉक, वाइबर और निबंज जैसे प्लेटफॉर्म नेपाल में पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी प्रक्रिया में हैं, लेकिन मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, यूट्यूब, एक्स, रेडिट या लिंक्डइन समेत किसी भी प्रमुख प्लेटफॉर्म ने अभी आवेदन नहीं भरा था। नेपाली अधिकारियों के अनुसार प्लेटफॉर्म से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने और राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के बाद सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मेघालय के मुख्य सचिव डोनाल्ड फिलिप वालांग 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति प्राप्त करेंगे। 1993 बैच के IAS अधिकारी वालांग अपनी आयु सीमा पूरी करने के बाद सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। इसी के साथ मैं प्रकाश वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अपेक्स न्यूज इंडिया।